साथ ऊपर आका है और नीचे आपका काका है. These are some questions that I want to ask from every aspirant who is preparing for either NEET or JEE. और मैं चाहता हूँ कि इनका एक बार आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें, फिर मैं अपने स्तर पर जवाब देने का प्रयास करूँगा. क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे, that are you consistent or just fooling yourself? Because you know inconsistent भी एक शब्द होता है. वो शब्द इसीलिए है क्योंकि दुनिया में कंसिस्टेंट लोग भी हैं तो इनकंसिस्टेंट लोग भी हैं. आर यू कंसिस्टेंट एनफ? फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड वन, व्हाट इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है आपका, और क्या आपने वास्तव में उस कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए प्रयास किया है या उसे अपने कमजोरी मानकर हमेशा के लिए छोड़ दिया है? द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस you practice on daily basis, or you practice just excuses via reading NCERT biology? It's your choice. The next question, do you have timetable in real on daily basis, or you are just putting the random efforts? These are mine question. You have to put the answer in the comment section. I will try to give mine answers as a solution as well. I think that this is the most critical video any NEET or JEE aspirant can watch on YouTube or any other platform. The fifth question, what do you love more, your NEET rank or your mobile phone? Because I know in this world right now, the mobile phone is the strongest weapon that is hindering growth in each and every segment. And the JEE or NEET segment as well. Do you run away from revision? Or you do it on daily basis, or you just can't face it? क्या ये तो मैं भूल गया हूँ, मैं अब फेस नहीं कर पाऊंगा इसको. The next question is, have you stopped giving test because बहुत ज़्यादा सिलेबस था और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रहा था तो अब छोड़ दिया है? The last one and the most important, you are preparing for this exam, maybe NEET or JEE, because you want to do it, or you have some parental pressure कि बुआ जी के बेटे का हुआ था IIT में तो मुझे भी करना पड़ेगा, या मौसी की बेटी का सिलेक्शन हुआ था मेडिकल कॉलेज में तो मुझे भी करना पड़ेगा. Is it so? Please try to answer in the comment section. It's your own story, your individual story. Now I will try to answer one by one, because you know these are the some random doubts that most of the students ask me regularly. So here I have written mine answers on the basis of my own thinking and what I believe. The first question was, are you consistent or you are just fooling yourself? Do you know one thing? चाहे आप 3 साल 4 साल भी ड्रॉप कर लें, if you are not consistent, you will never get select. I have seen 99% of NEET and JEE aspirants, those who get select with the effort of last 3 months. Last 3 months differentiate between the selections and those who never ever reached closer to the selection. मतलब 3 महीने की एफर्ट एनफ है सिलेक्शन के पास पहुंचने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए. बट what we do is one day reel and next day AIIMS Delhi field, and this cycle goes on and our own cycle get punctured, our dreams get punctured at the end. So if you are not consistent, you will never ever reach anywhere. Consistency is the key of any lock, maybe it's lock of IITs or lock of medical colleges. You have to be consistent. The second one, what is your weakest subject? Are you putting honest efforts? Now 99% of selections never happens because you know you don't try tough subjects. मतलब वही NCERT खोल के और ह्यूमन प्रोडक्शन पढ़ते रहना है, ना फिजिक्स पढ़ना है ना केमिस्ट्री पढ़ना है. IITs वाले मैथ्स नहीं पढ़ते.
तो कंफर्ट जोन में अगर रहोगे ना तो भाई कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरे को पता है इसमें, अगर मैं नीट वाले बच्चे से पूछूंगा तो लोग बोलेंगे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। जेई वाले से पूछूंगा तो मैथमेटिक्स। टफ, देखो मैथ्स पढ़ोगे तो फिजिक्स आएगी, फिजिक्स पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बायो आएगी, ये सीक्वेंस होता है। तो अगर मुझे केमिस्ट्री सीखनी है तो आई नीड टू स्टडी फिजिक्स वेरी वेल। अगर मुझे फिजिक्स सीखनी है तो आई रियली नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स वेरी वेल। टफ चीज़ें पढ़ने पर ही बाकी चीज़ें आसान होती है। और मैं फिजिक्स के लिए जहाँ तक मैं एक बहुत सिंपल सी बात मैं हमेशा बताई है कि सॉर्ट एग्जाम्पल्स पढ़ो जितना संभव हो सके उतना, और समरी बनाओ कंटेंट की, फॉर्मूलाज की और डिराइव्ड फॉर्मूलाज की जो न्यूमेरिकल्स के इन बिटवीन होते हैं। एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। कंटेंट जब दिमाग में सेट होने लगता है ना तो ज़िंदगी भी सेट हो जाती है। लेकिन हम कंटेंट को कभी सेट नहीं करते और लाइफ तो फिर बिखरी रहती है हमेशा। और फिर हम गाना गाते रहते हैं कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जा पानी कम था। नहीं, कंटेंट की कमी है आपकी ज़िंदगी में, दैट इज़ व्हाई यू आर मिसिंग इन योर लाइफ। अब अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व ऑन डेली बेसिस। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आइदर यू अपीयर इन द नीट और इन द जेई, यू नीड टू अटेम्प्ट a lot of questions। नीट में आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जेई मेन अगर आप देंगे तो आपको 75 क्वेश्चंस आर देयर, फिर जेई एडवांस में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को फेस करना है। बट एज फार एज नीट एस्पिरेंट्स आर कंसर्न, वो एनसीईआरटी खोलते हैं और जूलॉजी पढ़ के खुश रहते हैं। दिस इज देयर ड्रीम लाइफ एंड दिस इज हाउ दे कैन एक्ट वेरी वेल कि बस अब घर वाले देख रहे हैं, हाँ हमको क्या पढ़ते हुए, एनिमल किंगडम पढ़ते हुए। एंड दैट इज द फेक सेंस ऑफ एफर्ट्स, द फेक प्रिपरेशन, दैट इज नॉट रियल एट ऑल। The reality come when you solve numericals. There should be certain amount of numericals on daily basis. हाँ, आप 3 सब्जेक्ट का एक साथ नहीं कर सकते तो किसी दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का करो, या किसी दिन सिर्फ फिजिक्स का करो, या किसी दिन केमिस्ट्री का करो, या किसी दिन सिर्फ मैथ्स का करो, बट डू इट। थ्योरी विल टेक यू nowhere. इट्स अ गेम ऑफ न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में भी फिक्स करना है दैट मुझे 30 मिनट मैंने फिक्स करे, इन 30 मिनट में मैं 30 सवाल करूंगा, या 30 मिनट में 20 सवाल करूंगा, और लास्ट में एक साथ आंसर के देखूंगा। हम तो इतने बड़े नवाब हैं कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाथों हाथ आंसर देखते हैं। अच्छा, जब पता लगता है कि पहले क्वेश्चन का उत्तर गलत है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसका उत्तर हमारा सही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पहले क्वेश्चन का उत्तर देखने गए थे तो दूसरे का हमने देख लिया, तब हमें पता है कि दूसरे सवाल का उत्तर क्या होगा। दिस इज द ग्रेट स्किल वी गॉट। To solve the questions, please, and all those things takes efforts. इनके टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिलते भाई, ये प्रैक्टिस से आता है। तुमको हर चीज़ का पीडीएफ चाहिए। डू यू हैव टाइम टेबल और यू आर जस्ट पुटिंग द रैंडम एफर्ट्स? देखो, जो बात करते हैं ना कि नीट में इतना टाइम बचा है, जेई में इतना टाइम बचा है, टाइम वो नहीं है। टाइम उतना ही होता है जितने की आपके पास प्लानिंग है। अगर प्लानिंग है तो 2 दिन भी बहुत है, प्लानिंग नहीं है तो 200 दिन भी कम है। यानी कि अगर प्लानिंग है तो 60 दिन बहुत है, प्लानिंग नहीं है तो 6 साल भी कम है। इवन यू टेक 6 years ऑफ ड्रॉप, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल एस्पिरेंट्स हु टेक 7 years 6 year ड्रॉप्स एंड रीच नोवेयर। सो हैव प्लान। जैसे मैं हमेशा वो DWR की बात कहता हूँ, है ना, एक डायरी हमने बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से लॉन्च की हुई है। D व्हाट आई डिड, W व्हाट आई विल, A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। और याद रखो, जवानी में जब सपना पूरा होगा ना तो बुढ़ापे में हर कोई अपना होगा। जवानी में सपना पूरा नहीं होगा तो गेम खत्म है, सब पराया हो जाता है भाई। और ये जो मैंने कहा आप लोगों को कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके लिए आप चाहो तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड का यूज़ कर सकते हो। और हमारी टेस्ट सीरीज़ है अभी, NNTS के नाम से एक पूरा बॉक्स आता है 1.25 किलो का, 1300-1400 पेपर से, उसमें कॉस्ट हमने बहुत कम रखा है। पेपर जितने पेजेस में उससे ज़्यादा पेजेस में सॉल्यूशन है, एररलेस टोटली। इन केस वहाँ कहीं 1-2 एरर है तो वी विल पुट ए पेपर देयर कि भाई ये हमारा करेक्शन लेटर है, द फ्लोलेस, क्योंकि हम लोग आपके करियर के साथ में समझौता नहीं कर सकते। वी आर डूइंग एवरीथिंग बेस्ट फॉर यू, बट यू yourself is proving out to be worst for yourself, and that is the biggest thing. Care.
सो द नेक्स्ट वन, जो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोड़ा फसरा होगा ना, जो सबसे बड़ी बाधा आ रही होगी, आपका मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट होगा। पता है, द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट यू कैन सी इन योर फोन विल बी योर जेई रैंक और नीट रैंक, दैट मार्कशीट। वरना तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर और रैंक एक जैसा दिखता है। क्या था रोल नंबर? बोले सर 13,15,642, और रैंक सर 15,14,372। तो रैंक अच्छा है कि रोल नंबर? बोले सर रोल नंबर ज़्यादा ऊपर था, रैंक तो उससे पीछे आ गया। तो सीट, देखो एक चीज़ स्मार्ट हो सकती है, तो आपका फ़ोन स्मार्ट हो सकता है या आप हो सकते हो, यू हैव टू डिसाइड। अगर आपका फ़ोन स्मार्ट है और आप उसको 24 घंटे यूज़ करो, यू विल प्रूव आउट टू बी द डम पर्सन। और फ़ोन का यूज़ करो फॉर द अलार्म, because you are not successful one. Once you become successful, don't accept my all these gyan, you live your life. But when you are not successful, understand this is what we have done. जो आपका क्लॉक है, अलार्म क्लॉक, और जो आपका जो इसको हम लोग बोलते हैं ना स्टॉप वॉच, फोन में होती है स्टॉप वॉच, उसको स्टार्ट करो फिर पढ़ने बैठो। जैसे उठ रहे हो वॉशरूम के लिए, पानी पीने के लिए, स्टॉप दैट। और वो स्टॉप वॉच का टाइम इसके स्क्रीन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट यू। बट हम वो नहीं करते। हमारा स्क्रीन टाइम आता है 9 घंटे और पढ़ाई का टाइम आता है 9 मिनट। खैर, द नेक्स्ट वन इज, डू यू रन अवे फ्रॉम रिविजन? बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, कुछ भी याद नहीं है। डर लगता है अब कि मेरा सच सामने नहीं आ जाए। यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम रिविजन, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रैंक, फ्रॉम योर रिजल्ट। क्योंकि बिना रिवीजन किए तो ये पक्का है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि अगर पुराना याद नहीं है तो एक दिन नया भी पुराना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो तुम समेट रहे हो ना कि ये PDF डाउनलोड यहाँ से कर लिया, उसके नोट्स फोटोकॉपी करवा ली, वो बुक मंगवा ली, इट विल नेवर हेल्प यू इन द सिलेक्शन। दिमाग में कंटेंट सही से लेने से सिलेक्शन होता है, मोबाइल फ़ोन में कंटेंट समेट लेने से सिलेक्शन नहीं होता। तुम समेटते रहो जमाने भर का जितना समेट सकते हो, जब तक खोपड़ी में कंटेंट नहीं सही सकते, इट मेक्स नो सेंस। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर कोचिंग सिस्टम, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर द हेल इट इज। फेंके जाओ, नो वन केयर्स अबाउट द रिविजन। इन माई बुलेट शॉर्ट सीरीज आई एम फोकसिंग ऑन द रिविजन। इट इज डिफरेंट, इट इज कॉन्सेप्चुअल, इट इज कनेक्टेड, लेटेस्ट PYQs, इट्स अमेजिंग। और हम लोगों ने इस रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ही NCERT निचोड़ बुक्स हमारी लॉन्च किए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, और इन्वर्स में होता है रिसोर्सेज के। हम ड्रॉप पे ड्रॉप करते जाएंगे और फिर यही सवाल आपको सताते जाएंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। खैर, द नेक्स्ट वन, और मैं पता है ये सब वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मैं भी थकता हूँ। आई एम नॉट सुपर ह्यूमन, आई एम नॉट आयरन मैन, आई एम नॉट स्पाइडरमैन, बट आई नो कि अगर मैं थोड़ा एफर्ट्स आप लोगों के लिए पुट करूँगा तो सम ऑफ यू मे बिकम सक्सेसफुल एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। वो एक इंसान का भरोसा जो पैदा होता है ना कि यार मैं एफर्ट करके सक्सेसफुल बना, तो वो इंसान कई लोगों और सक्सेसफुल बनाता है। दैट मेक्स रियल सेंस टू मी। और मुझे पता है आज जो हालात हैं यूट्यूब पर, ऐप्स के पर जो गाइडेंस मिल रहा है वो बड़ा पुअर है। मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो हाउ टू गाइड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे देमसेल्फ नेवर फाउंड, बैठ के उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें गाइड कैसे करना है। दे कम ऑन द कैमरा एंड टॉक रैंडम शिट्स। I don't want to defame anyone, but if they are not putting efforts, I will say like this. This is how I respect people. खैर, आगे चलते हैं एक बार। Have you stopped giving tests due to the lot of syllabus or maybe no improvements at all? देखो भाई, सिलेबस तो आपको पता है ना, मेन एग्जाम में फुल सिलेबस आना है। तो अगर आप 10-12 चैप्टर से अगर भाग रहे हो तो इसमें कुछ फ़ायदा है नहीं आप लोग का। इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, टेस्ट अगर स्टॉप किया तो सिलेक्शन की कोई उम्मीद वैसे भी नहीं। स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे हेल्प कर सकती है इसमें? जैसे मान लो कि मेरे टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? तो भाई जहाँ पर भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ उन चैप्टर्स का पहले पुराने टेस्ट होंगे, अब वो सिर्फ टेस्ट लगा के आओ कि भाई अगर रोटेशनल मोशन, SHM, वर्क पावर एनर्जी इस टेस्ट में है, तो जब रैंडमली एक चैप्टर आए होंगे वो पेपर करके आओ, कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन होता है। या फिर उसके चैप्टर वाइज PYQs करके आओ, JEE के, नीट के, या फिर उसके चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ के आओ जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपने मार्क किए होंगे। तो स्मार्ट गेम प्ले करो ना, सारी चीज़ें होंगी उसके। या फिर मान लो कोई बुक तुम सॉल्व करते हो,
उस बुक में तुमने स्टार मार्क किए होंगे क्वेश्चन, वो सॉल्व करके आओ, कुछ तो करके आओ ना। छोड़ देना इज नॉट ए वे, वो कोई सॉल्यूशन है नहीं इस दुनिया में। और एक चीज ध्यान रखो, फिर भी अगर लगता है कि सब कुछ छोड़ दिया है ना आपने, 75 हेल डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of February, it is one of the finest year program that we have created for the students like you who have stopped the preparation. हम उसमें पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, टास्क देंगे, टीचिंग, टेस्टिंग, टास्क। जयपुर में स्टार्ट हो रहा है। 72300855 नंबर है, 72300855 एंड यू कैन व्हाट्सएप अस। और व्हाट्सएप तभी करना प्रभु जब यहाँ के पढ़ सकते हो। घूमने मत आना कि हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है, मत आना। कुछ करने की इच्छा हो, ठीक ठाक पहले से नीट में मार्क्स आ रखे हो, नीट क्वालिफाई कर रखी हो, 150, 200, 300, 400 नंबर लाए हो, तभी आना। या मज़े मारने मत आना, क्योंकि मेरे को पता है वो स्टूडेंट बाद में ये कहते हैं टीचर्स ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, प्रभु हमें माफ़ करना, प्लीज़ मत आना। आप अपने घर पे ही आवाज़ करो, वहीं पे आप राजनिवास में रहिए, आप प्रिंस है, योर लाइफ योर रूल्स, आप हमें माफ़ करना, आप मत आना। रिक्वेस्टिंग यू स्ट्रांगली, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कल को नाम खराब होता है ना, वो पैसा धूल हो जाता है। आप अपना पैसा अपने पास में रखिए, अपनी कंफर्ट भी अपने पास में रखिए। आपको नहीं आना है जिसको कंफर्ट चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत क्लियरली बोलता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। जिसको एफर्ट करना है वो आओ, बाकी बकवास लोग नहीं चाहिए जिनको सिर्फ बकवास करनी है, और बहुत भर चुके हैं आजकल तो ऐसे। खैर, द लास्ट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, आर यू प्रिपेयरिंग ड्यू टू द सोसाइटी और पेरेंटल प्रेशर, और इन रियल यू वांट टू बिकम IITian और डॉक्टर? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई हैव सीन कि पापा ने करवा दिया। एक दिन पापा चले जाएंगे, मम्मी भी चली जाएंगी, who will be with you? You and your profession. भाई एक चीज़ मैंने अच्छे से फील की है कि अगर तुम दूसरे को खुश करने के लिए कोई चीज़ करते हो ना, तो तुम कांटों का ताज पहन रहे हो जो तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा, हमेशा दुख देगा, हमेशा। Whatever the hell you are doing, do it for yourself, for your comfort, for your achievement. कि मैं कर रहा हूँ because I want to do it, ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन है, मुझे करना है। I talk to the student because it's my passion. I love guiding student. I love mentoring them. I love when they grow. I'm not here for the money. I would have earned money in many other ways. I'm here because I love it. So if you love something seriously, only then do it. Because if you are doing it for others, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कि दूसरे खुश हो जाए इसलिए मैं ये दुख झेल रहा हूँ। भाई इसी को धरती पे नरक कहा गया है, इसी को पाप, यही नरक है, यही डेफिनेशन है नरक की, कि दूसरे खुश हो जाए इसलिए मैं दुखी होकर भी ये झेल रहा हूँ। तुम नरक में आ चुके हो ऑलरेडी। तो तुम्हारे खुद के आंसर देना, और अगर तुम्हारा कहीं आंसर तुम्हें ना मिले तो मेरे आंसर्स देखना, है ना। और ये मत बोलना लास्ट में कि नहीं नहीं सर हमको बाद में पता चला कि हम जेई और नीट के लिए बने नहीं। भाई बना कोई नहीं होता। इट इज़ नॉट द रील मोटिवेशन गेम कि हम एक दिन रील देखेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे। 1-2 साल एफर्ट करना होता है इसमें। इट कम्स विद एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं है तो फिर मोटिवेशन भी नहीं आएगा। और एनर्जी के लिए मैं बार बार कहता रहा हूँ, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। इसी से OTT भारत पे मैंने इस पर डिटेल सेशन लिए। Please, when your juniors see you, I wish they call you fighter, not a loser. Thank you.